Good evening, sir. Good evening. Good evening, everyone. So, Sir. Abhinav, what was the total marks which you have got? Have you totaled it? No, sir. So, how many done? Just tell me. I haven't had, sir. Okay. So, what we will do, already I have shared the answer, right? So, please do the total. And I think which is left, number one was the story of that thirsty crow, that is left one. Abhinav, are you hearing me? But, sir, Are you Sir, getting my speak. voice? Are you Yes, getting my sir. voice? Okay. So the pending one Yes, sir. is the story of Thirsty Crow. And second, No, sir, I read. oh, pending one to check. Oh, yes, sir. I'm telling pending one to check. So one is the But, story of Thirsty. Hmm. Sir, everyone's story is different. So, what check? Everyone's story is First, different. listen to me, Abhinav. Let me complete, and then you can. So I'm telling that we have checked all the answers. Now, pending one, they are the story of Thirsty Crow and what all things we are doing to improve our spoken English. Right? Yes, sir. Only, Yes, sir. only these two answers are to be checked. Rest all we have discussed in the class. Harsh, are you there? Yes, sir. So सिर्फ यही दो pending है, story of Thirsty Crow and Yes, sir. what all things we are doing to improve spoken English. बाकी पूरा check हो चुका है. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So what I want, So because yesterday ah, I was absent, sir. How was mine? okay, so what you can do, already that class is posted on the YouTube channel. Fine. So you can go on that Oh, and you can check all your answers. The pending one is going Okay. to be only two subjective answers. One was Thirsty Yes. Crow and second was Yes. what all things I am doing to improve my spoken English. Right? okay. And what I want that tomorrow first half, please take time from me. Please let me know when you are going to be free. And we will connect on telephone call. And then I am going to read your answer on telephone. And I will tell you which all sentences are having a problem needs to be corrected. Right? Because checking all the answers in the class is tough. It is wastage of time. Yes, sir. So Yes, sir. all Yes. three of you take time from me, connect, and then online I will check your those two answers. The story of Thirsty Crow also, and what all things you are doing to improve your spoken English. Rest all, I think, answers I have provided. So I think Harsh was there, Abhinav was there. They have done the checking part. Radha ma'am, you were not there, so you can do one thing. You can go to that session on YouTube channel. You can play the video and you can open your answer sheet and one by one you can check and correct it. After that, if you have any Okay, sir. confusion, you can talk to me. Sir, you told that one is the Thirsty Crow is pending and the spoken on. So Thirsty Crow and spoken English answer. Those two answers I will check when I will talk to you on phone. When it happened, spoken English answer. So you have sent, na? So all of you have sent me the answer of Thirsty Crow also, and what all things you are doing to improve your spoken English. Yeah, okay. मैं थोड़ा सा बात करता हूँ. आप लोगों ने मुझे सारे आंसर्स भेज दिए हैं, राइट? Yes, yes, sir. उसमें से सारे क्वेश्चन का आंसर जो भी आपका ऑब्जेक्टिव था वो मैंने लास्ट क्लास में चेक कर दिया है. हर्ष का चेक हो चुका है, अभिनव का चेक हो चुका है. आप नहीं थी तो आप YouTube पे जा करके उसको चेक कर सकती हैं.
थर्स्टी क्रो और स्पोकन इंग्लिश के लिए आप क्या कर रहे हैं, वो दो आंसर बिकॉज सब्जेक्टिव है, उसको मैं फोन पे चेक Yes, sir. करूंगा Now I आपसे understand. बात करते करते। ठीक है, तो Okay, आप sir. लोग अपना अपना समय मुझे Yes. मैसेज में भेज दीजिए, उस समय में आई विल कनेक्ट और मैं आपके वो दो आंसर्स चेक करूंगा जब आप भी लाइन पे रुकेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कहां कहां किस सेंटेंस में क्या दिक्कत है, क्या गलती है। Okay, sir. अब क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Okay, so now today we are going to start our day 12. Day 12 कैसे है मैं इसको जोड़ रहा हूं, because first 8 class, 9th was revision, 10th and 11th they were for copy checking and oral Exam. exam and copy checking and all. Oral also we try to discuss oral, and then finally today we are starting 12th. Okay. Yes. Now day 12 again we are starting our next 8 classes. तो वापस वैसे ही होगा, 8 क्लास होगा, फिर रिवीजन, फिर एग्जाम, फिर 8 क्लास रिवीजन एग्जाम, राइट? Okay, so now day 12 what we have done, you can see my screen I believe. So we have done all tenses, we have done salutations and greetings, we have done etiquettes and behaviors and phrases and exclamation, right? We have done all these things. Now check once again, if you have any difficulty in any past chapter, please let me know. बहुत जरूरी है, please. If you have any difficulty, let me know. Videos I'm sending you on a regular basis. I think you must be watching them. 5 golden rules, you must be following them. And I told you that every day morning, you have to have self-motivation mantra. One mantra or one way to motivate yourself, right? To keep yourself charged the whole day. By listening to some song or doing some great work or talking to someone, जिससे भी आपका मोटिवेशन बढ़ता है, वो काम करेंगे और अपने को एक्टिव रखेंगे. Entire day we have to learn, we have to grow, we have to help. Okay. Now today we will discuss modals. MODALS, modals. I don't know आप में से कितने लोगों ने इसको पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, but not to worry. आज हम डिस्कस करेंगे, and then once this class is over, you can go to your grammar book, you can do a revision, and again if any confusion we can talk, we can discuss. Modals are very very important in terms of making sentences. Sentence बनाने के लिए ये बहुत important है. Fine. अब modals में क्या क्या है? हर्ष, आपको कुछ आइडिया है modals का? You have any idea modals? पढ़ा है आपने कभी? नहीं पढ़ा है. अभिनव? हर्ष का तो नो आइडिया बोल दिया हर्ष ने. अभिनव, कुछ आइडिया है आपको modals का? अभिनव, you have any idea? अभिनव सुन नहीं पा रहा है मेरे को. राधा मैम, आपको कुछ आइडिया है मॉडल्स का? No, sir. मुझे नहीं आपको भी पता है आइडिया नहीं, models का. कोई बात नहीं. अभी जब हम देखेंगे एग्जाम्पल तो आप बोलेंगे हाँ हाँ सर, मुझको पता है, सब मालूम है. देखते हैं क्या क्या है. सो कैन, CAN, कैन. कैन जो है वो मॉडल्स का एक प्रकार है जिसको हमें अच्छे से मालूम है. कैन का यूज हम कहाँ करते हैं? जहां हमें दिखलाना होता है अपना पावर, एबिलिटी. मैं ये काम कर सकता हूं. I can do this. I can break this. I can run. I can eat. तो मेरे में ये काम करने की क्षमता है. क्षमता बताने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं. बिना कैन का इस्तेमाल किए क्षमता बताना मुश्किल है. बहुत ही कॉमन है तरीका है. जब भी मुझे बताना है कि मेरे पास क्या करने की क्षमता है, हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल धड़ल्ले से. ये मॉडल का एक प्रकार है. दे ऑल आर हेल्पिंग वर्ब. ये मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, लेकिन
इनका इस्तेमाल खास खास परिस्थिति में ही होता है। जैसे कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर है, हैज, हैव है, वाज, वर है, शैल, विल है, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वो सिर्फ सेंटेंस में आकर के एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर देने में हेल्प करता है। लेकिन जो मॉडल्स हैं वो हेल्पिंग वर्ब हैं और वो दमदार हैं। वो खास खास सिचुएशन में उनका इस्तेमाल किया जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट, मे वापस एक मॉडल है जिसका इस्तेमाल क्या होता है? When I want to take permission, may I come, may I go, may I dance, permission। ठीक है? या कभी कभी अपने कुछ इच्छाओं को प्रकट करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। So I was thinking I may go to Patna। मैं सोच रहा था कि कहीं मैं शायद, मतलब मेरी इच्छा है कि मैं पटना चला जाऊं। आई मे का मतलब ये सर्टेन नहीं है, ये कंफर्म नहीं है, इसमें आशंका है। या तो मैं किसी से परमिशन मांग रहा हूं या मैं विश कर रहा हूं कि आई मे डू दिस। कितना अच्छा होता अगर मैं ये काम करता, आई मे डू दिस, आई मे गो देयर, ऐसी इच्छा मेरे मन में है। तो वहां पर हम मे का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हमेशा गलतियां करते हैं कि मे और कैन दोनों का हिंदी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। मैं खा सकता हूं, आई कैन ईट। दोनों का हिंदी है सकना, लेकिन इंग्लिश में दोनों का इस्तेमाल बिल्कुल अलग अलग है। पावर के लिए, एबिलिटी के लिए कैन, और परमिशन के लिए, डिजायर के लिए, विश के लिए मे। अगला है, अच्छा ये अब एग्जांपल है। सो कैन आई वॉक वर्सेस मे आई वॉक। कैन आई वॉक का मतलब मैं पूछ रहा हूं कि क्या मैं चल सकता हूं, मतलब क्या मेरे अंदर चलने की ताकत है। सपोज मेरे को कुछ बीमारी हुई थी, मैं बीमारी के बाद ठीक हुआ। अब मैं डॉक्टर से, मतलब अब मैं अपने आप से पूछ रहा हूं कैन आई वॉक, क्या मैं चल सकता हूं। मैं डॉक्टर से पूछ रहा हूं कैन आई वॉक, यानी कि मैं अपने पावर और एबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। बट जब मैं बोलता हूं मे आई वॉक, यानी मैं किसी से परमिशन ले रहा हूं कि क्या मैं टहल सकता हूं, मे आई वॉक हियर। दोनों सेंटेंस में बहुत अंतर है। सो प्लीज बी क्लियर, कैन और मे का इस्तेमाल करने में बिल्कुल क्लियर रहिए। पावर, एबिलिटी कैन, परमिशन मे। अगला है कुड। कुड का मतलब होता है अगेन रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट, कुड आई बोरो योर पेन, कुड आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि क्या मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है, क्या मैं तुम्हारा पेन उधार में ले सकता हूं। कुड का इस्तेमाल करते हैं वहां पर। फाइन। माइट, सोहन माइट हैव हेल्प्ड हिम। यहां वापस अगर आप देखेंगे तो माइट का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, जहां थोड़ी सी आशंका होती है, शायद सोहन ने उसकी मदद की होगी, मन में मेरी आशंका है, संदेह है मेरे को, तो हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। सोहन, इट माइट रेन, शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन। ठीक है, तो माइट का इस्तेमाल भी हम इसके लिए करते हैं। वुड। अब कुड और वुड दोनों का इस्तेमाल हम रिक्वेस्ट के करते हैं। राइट, वुड का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। वुड आई गेट दिस, वुड आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक ग्लास पानी मिलेगा। तो वहां पे आप वुड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। शुड का इस्तेमाल हम करते हैं इच्छा के लिए। शुड आई डू दिस, शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाना चाहिए, क्या मुझे ये काम करना चाहिए। शुड आई डू दिस, शुड आई गो देयर। तो आप बोल रहे हैं कि आपके मन में काम करने की इच्छा है, तो आप डिस्कस कर रहे हैं क्या मुझे वहां जाना चाहिए, क्या मुझे ये खाना चाहिए। आप एक किसी से बात कर रहे हैं कि भाई मेरे मन में ये भावना है, बताओ ये काम करना सही है या नहीं है। शुड आई डू दिस।
शुड वर्सेस ऑट। अब एक वापस मॉडल है जिसको हम बोलते हैं OUGHT, ऑट। ऑट का मतलब होता है यू ऑट टू डू दिस, यू ऑट टू स्टडी, यू ऑट टू कंप्लीट योर होमवर्क। यानी तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, यू ऑट टू डू दिस। यानी कि जो तुम्हारा प्रोफाइल है, जो तुम्हारा प्राइमरी काम है, तुम्हारे लिए काम करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हर्ष एक स्टूडेंट है और हर्ष को अपना होमवर्क बनाना है, सो आई विल टेल हर्ष यू ऑट टू कंप्लीट योर होमवर्क। यानी तुम्हें अपना, अब देखिए अब यहां पर कैसा है, यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क एंड यू ऑट टू कंप्लीट योर होमवर्क, दोनों में क्या अंतर है? यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क मतलब तुम्हें अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए। ये मैं उसको एक एडवाइस दे रहा हूं, एक उसको मैं सजेशन दे रहा हूं, मैं उसको फोर्स नहीं कर रहा हूं। बट इफ आई से यू ऑट टू कंप्लीट योर होमवर्क, मतलब तुमको अपना होमवर्क कंप्लीट करना ही चाहिए। ये अंतर है। तो अपने से बड़े के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, यू शुड गो देयर, यू शुड डू। लेकिन अगर हमें कुछ कंफर्म बोलना है तो हम ऑट का इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो ये शुड में और ऑट में भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मस्ट मतलब आपको ये काम कंफर्म, ये भी अच्छा। ऑट और मस्ट में थोड़ा सा अंतर है कि मस्ट का मतलब ये होता है कि हम किसी को पुश कर रहे हैं इस काम को करने के लिए, और ऑट हम तब बोलते हैं जब उसको उसके लिए काम करना, मतलब उसके प्रोफाइल को ये काम करना सूट करता है। जैसे अगर हम डॉक्टर को बोलते हैं यू ऑट टू ट्रीट योर पेशेंट्स, यू ऑट टू ट्रीट योर पेशेंट्स, इसका मतलब डॉक्टर के लिए पेशेंट का इलाज करना एक मैंडेटरी चीज है, वो लीगल वे में वो सही है, ठीक है। लेकिन मस्ट में वो लीगल थिंग नहीं आता है, वहां हम किसी को पुश कर रहे हैं काम करने के लिए। जैसे कि अगर हम बोलते हैं किसी फादर को यू ऑट टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, तो फादर का ये ऑब्लिगेशन है कि वो अपने परिवार का ख्याल रखे, तो वहां पर हम ऑट लगाते हैं। अगर हम मॉम को बोल रहे हैं यू ऑट टू फीड योर बेबी, आपको अपने बच्चे को खाना खिलाना चाहिए, वो मदर का ऑब्लिगेशन है, उसके लिए काम करना जरूरी है, लीगल इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। और मस्ट मतलब हम सीधा पुश कर रहे हैं, यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट डू दिस। यहां हम किसी जूनियर को या किसी दोस्त को हम फोर्स करते हैं, तो वहां हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऑट इज मैंडेटरी, मस्ट इज पुश, फोर्स। फाइन। तो ये सारे जो हैं इसको हम बोलते हैं मॉडल्स, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब में आते हैं, बट ये खास खास सिचुएशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। हमें इनके इस्तेमाल को समझना होगा एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू यूज देम इन आवर सेंटेंसेस। कैन का यूज कहां होगा, मे का कहां होगा, कुड, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ऑट, इन सब का इस्तेमाल हमको प्रैक्टिस करने से वी आर गोइंग टू लर्न। नाउ एक और चीज हमने पढ़ा था इन सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस। यस, वी हैव रेड दैट। और उसमें हमने देखा था कि जब भी हम कुछ कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, फाइन, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, इन सब चीजों में जो सेंटेंस बनता है उसको हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस, राइट। तो बिल्कुल वही चीज है, लेकिन आपके दिमाग में ये बैठा रहे कि भाई अगर कोई भी सेंटेंस में ऑर्डर है, कमांड है, राइट, रिक्वेस्ट है, तो हम बोलते हैं ये सेंटेंस इंपरेटिव मूड का है। यानी जो सेंटेंस का जो भाव है, जो मूड है, हम बोलते हैं ना आज मेरा मूड खराब है, इस सेंटेंस का जो मूड है वो इंपरेटिव है। यानी या तो उसमें कोई ना कोई ऑर्डर की बात हो रही है, या रिक्वेस्ट की बात हो रही है, या एडवाइस दे रहे हैं, या कुछ काम को करने के लिए मना कर रहे हैं, डिक्लेयरिंग अ प्रोहिबिशन, है ना। आपको ये काम नहीं करना चाहिए, हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, सो वी शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंस। तो ये सारे
जो भी सेंटेंस बनेंगे जहां पे ऑर्डर हो रहा है, गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, डोंट डू दिस, ये सारे के सारे हो गए इंपरेटिव मूड के सेंटेंसेस हो गए. रिक्वेस्ट, प्लीज कम हियर, काइंडली डू दिस, गिविंग एडवाइस, you should do this, you should do that, declaring a prohibition, you should maintain a social distancing, you should wear a mask. ये हम एक उसको प्रोहिबिट कर रहे हैं कि ये काम नहीं करना है. कमांड, कम हियर, गो देयर, राइट. तो ये सारे जो भी सेंटेंस बनते हैं, गिविंग परमिशन, गो, प्लीज गो आउट, प्लीज कम टुमारो. तो ये सारे जो भी हमने लिखा है पॉइंट्स, अगर सेंटेंस में वो सारे भाव होंगे, देन वी कैन से दैट ये सेंटेंस इंपरेटिव मूड में, दे आर इंपरेटिव सेंटेंसेस, और उसको इंपरेटिव मूड के सेंटेंसेस भी हम बोलते हैं. तो आपको ये मालूम रहेगा. तो कल को किसी ने बोला कि भाई ये सेंटेंस इंपरेटिव मूड में है, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे. दे ऑल आर इंपरेटिव सेंटेंसेस, और उनको हम बोलते हैं कि दे आर इन इंपरेटिव मूड. फाइन. सो ये दो चीजें हमने आज डिस्कस की. एक डिस्कस किया हमने मॉडल्स, जिसमें ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं और खास खास सिचुएशन में ही उनका इस्तेमाल होता है. एंड सेकंड वी डिस्कस्ड कि अगर ये सारे पॉइंट्स रहेंगे सेंटेंस में, तो हम बोल सकते हैं कि दीज सेंटेंसेस आर इन इंपरेटिव मूड. नाउ आई वांट कि आफ्टर दिस क्लास यू ऑल हैव ग्रामर बुक्स और यू हैव इंटरनेट. आप मॉडल्स, इंपरेटिव मूड्स को थोड़ा सा और आप स्टडी कीजिए. ट्राई टू क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. Now in last class we discussed drive, drove, driven, forget, forgot, forgotten. हाँ, कुछ बोल रहा है अभिनव? Yes, sir. बोलिए. Sir, please repeat the models. I was disconnected in that time. My goodness. Definition of model. If I will discuss model, Sir, you are telling in line, so I don't tell you in between. If You are telling in line, so I don't tell. Abhinav, if I will repeat that, Yes, sir. then I cannot finish this No, class. sir. No, sir. Full not only models definition. What is Definition is model? very Only simple. this one. Modals are helping verbs. They are helping verbs or auxiliary verbs which are used in certain circumstances. कुछ खास खास परिस्थितियों में ही उनका इस्तेमाल होता है. हर जगह उनका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं. उनका इस्तेमाल करने का फिक्स है. हाँ, तो जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब है वो सारे मॉडल्स में आ गए. नहीं, कैसे? अरे मैं इतने अच्छे से बोला. इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, शैल, विल, ये सब मॉडल्स के पार्ट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक सेंटेंस. तो सिर्फ ये मॉडल्स में क्या आया, वो जो मस्ट, यही बस. कैन, कैन, शुड, कैन, मे, शुड, कुड, ऑट, मस्ट, माइट, जो कि किसी खास सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए यूज करते हैं, सिर्फ वही मॉडल्स में आते हैं. इज का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? इज का इस्तेमाल किसी खास परिस्थिति में नहीं होता है. जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाएंगे तो वहां पे हम यूज ही इज गोइंग, ही इज ईटिंग, इसका अपना कोई वैल्यू है ही नहीं. बट कैन का इस्तेमाल करेंगे, पूरे सेंटेंस का जो मूड है वो चेंज हो जाएगा. वो कैन पे डिपेंड करता है. ठीक है. नाउ अभी क्लियर हुआ होगा आपको. ओके. नाउ आज का जो हमारा वर्ब फॉर्म्स है, दैट इज फ्लाई, गिव, ग्रो, हाइड, एंड द लास्ट वन इज नो. क्विकली V2 and V3. Fly, give, grow, hide, and know. Quickly. सर स्क्रीन पे please क्यों नहीं repeat आ रहा है सर? क्या नहीं आ रहा है? स्क्रीन पे वो वर्ड्स नहीं आ रहा है सर पहले. अभिनव, स्क्रीन पे आ रहा है आपको? कैन यू सी द स्क्रीन? No, sir. No, sir. आपको भी नहीं आ रहा है. It's showing Juguven session. minute, It's one showing minute. day 12 only. I will share again. Don't worry. I will share again. Now check. No, Now it sir. has come. No. Okay. It's still not. Still not come. Yes, sir. Now It's it come. came.
Okay, okay. Yes, sir. चलिए. Okay, I don't have much time today because so starting you can check Yes, also, you I can write completed. also. Fly, flew, flown, give, gave, given, grow, grew, grown, hide, hid, hidden, and know, knew, known. These are the verb forms. You can cross check afterwards, no problem. Now pronunciation, we have, oh, okay, again problem. No problem. Okay, ठीक है, जान लो. This numbering has gone. Okay. So the first one is desk. बहुत बार क्या होता है we call it dex. कौ पहले सौ बाद में. That is wrong. सौ पहले कौ बाद में. Desk. Now the second and third is important. Dessert and dessert. So dessert का मतलब होता है Yes, sir. मीठा खाना. खाने के अंत में जो हम खाते हैं, मीठा खाते हैं, that is called dessert. And desert का मतलब होता है रेगिस्तान. So dessert, desert. अगर आप उल्टा पुल्टा बोल देंगे तो पूरा सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाएगा. Now see the next one is determine. Determine में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि raw is silent. Determine. Okay? So I determine का हम यूज कहाँ करते हैं? कौन है भाई ये? There is a कोई तो आ गया है and he is trying to. Yes, sir. Its name is iPhone 12 Pro. हाँ. मैंने पूछा भी है कौन है तो उसने नहीं बताया मेरे को. उसको मैं बाहर निकाल दूंगा अभी और क्या. अगर नहीं बताएगा तो आउट हो जाएगा. So sometimes it's cross connection. नहीं, जो कोई ना कोई ग्रुप में होगा बट चला गया. He has gone. Yes, Okay. sir. It's ओके. सो डिटरमिन का मतलब होता है, बोलते हैं ना कि आई एम डिटरमिन टू डू दिस. मैं इस काम को करने के लिए कृत संकल्प हूं, है ना. मुझे काम करना ही करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं डिटरमिन. और इसमें रॉ का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है. स्मूदी. स्मूदी एक तरह का आपको ड्रिंक है जिसमें स्मूदी में एक तरह का ड्रिंक है जो काफी गाढ़ा होता है और मीठा होता है. यू कैन चेक, yes, sir. है ना. स्मूदी बोलते हैं Yes, sir. उसको. Yes, sir. Yes, तो sir. दिस इज स्मूदी. Yes, sir. Yes, sir. लास्ट में THIE है और उसको हम दी बुलाते हैं, स्मूदी. एंड लास्ट वन इज एग योक. एग योक, उसमें आपका लॉ साइलेंट है. एग योक. सो डेस्क, डिजर्ट, डेजर्ट, डिटरमिन, स्मूदी एंड एग योक. ओके. Now going to the next one. The spoken English video I will send you. Nothing to worry on that. Sir, today's PDF also. Today, Today's PDF. I will send you after the class. I will send you with PDF. Okay. Class work जो है वो हमें quickly करना पड़ेगा. First and second I will skip, and third you will do words related to musical instruments. Quickly you have 1 minute time. 1 मिनट में जितने भी musical instruments आपके दिमाग में हैं, you can write in English. Quickly. Musical instruments, जो भी आपको याद है. You have only 1 minute time. And then we will go for dictation.
Okay. Okay. So now. Abhinav, please tell me your list. Yes, sir. First is guitar, second is Okay. flute, third is tabla, fourth is dholak, fifth piano, sixth sitar, seventh is harmonium. Okay. Harsh, your list. Sir, first is flute, Hmm. second is harmonium, third Okay. is piano, Okay. fourth is keyboard, Okay. fifth is dholak, Okay. sixth is tabla, Mm-hmm. and seventh is sitar. Okay. The last one is guitar. ओके प्लीज चेक कि जो भी आपने लिखा है क्या उसका हिंदी इंग्लिश वही लाइक सितार लाइक ढोलक क्या उसको इंग्लिश में ढोलक बोलते हैं प्लीज चेक वंस अगर वो हिंदी इंग्लिश सेम है इट्स ओके इफ इट इज डिफरेंट प्लीज करेक्ट योरसेल्फ राधा मैम योर लिस्ट No, sir. Dholak is called also dholak in English. okay Dholak okay and tabla. I'm just telling to cross check Radha ma'am your list My list is very short, sir. Harmonium, no issues. guitar, flute, mouthorgan, drum. okay so Drum. mouth organ is there trumpet is there so I will suggest कि once the class is over you can go to internet and you can type name of musical instruments and you can check कि कौन कौन से नाम आपसे मिस हो गए उसको हम लर्न करने का प्रयास करेंगे now I'm going to tell you the dictation please be ready Yes, sir. first word is guide first word is guide second Yes, sir. is Okay. conversation बातचीत गाइड किसी को गाइड करना निर्देशित करना कन्वर्सेशन बातचीत डायलॉग संवाद Sir, fourth one was? fourth is auxiliary No, sir. Third is a third third one. is Third one. dialogue संवाद ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक ऑक्सिलरी वर्ब ऑक्सिलरी वोकैब्युलरी शब्दकोश शब्द भंडार वोकैब्युलरी नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इवेंट ये इवेंट कितनी बार होता है फ्रीक्वेंसी Sir, fifth one was? nationality guide conversation dialogue auxiliary vocabulary frequency next is nationality rashtriyata nationality then confuse after confuse is condition shart sthiti condition and the last one is contribution guide conversation dialogue auxiliary vocabulary frequency nationality confuse condition and contribution I am sharing it you can quickly check and tell me your score Sir, my only one is wrong. which one Fourth one. auxiliary Yes, sir. I Okay. also, sir. My also one. I Sir, also one sir, from guide. I write D after. okay mine is also, sir, only one is wrong. which one Auxiliary. okay fine so all are doing good life is beautiful video I will send after the class and now coming to activity now you have all these words dependent definite justice possible proper and all this Write it sentence. you have to Yes, sir, you right. have to
make the antonym. इनका एंटोनिम, इनका उल्टा शब्द बनाना है, इनका ठीक उल्टा. तो हम टाइम नहीं लगाएंगे. आई विल आस्क अभिनव, डिपेंडेंट का उल्टा. Yes, sir. Independent. इंडिपेंडेंट. हर्ष, डेफिनेट. Indefinite. मैम, जस्टिस. Injustice. Injustice. Abhinav, next. Impossible. Impossible. Harsh, next. Improper. Improper. Next, ma'am. Immortal. Immortal. Abhinav, next. Irreversible. Irreversible. I-R. Irreversible. Yes, sir. Harsh, Yes, sir. next. Yes, sir. Yes. Illegible. Illegible. And जो हर्ष, next. Indeed. Indeed नहीं होगा. Deed का उल्टा. Misdeed. M-I-S. Misdeed. And the last one, Abhinav. Mismanagement. Mismanagement. So by using I-N, I-M, I-R, I-L and M-I-S, इन प्रीफिक्स के सहारे हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं एंटोनिम्स, राइट? तो ये हमको सिर्फ जानना है कि कई बार ओनली बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस वी कैन फ्रेम एंटोनिम्स, राइट? सो ये हमने पहले ही पढ़ा था, हाउ टू मेक वर्ड्स, वर्ड फॉर्मेशन, वहां भी हमने देखा था. सो वंस अगेन आई हैव डिस्कस्ड. एंड नाउ कमिंग टू द different uses of modals and imperative mood. You have to learn these two things. Jahan bhi doubt rahega, you will ask me. Thank you card and good night card I will discuss in my next class. I think I have not discussed. I will discuss in the next class. Follow 5 golden rules. Keep revising verb forms, pronunciation words and dictation words. Last class का homework था क्या? Hence, thank you card. अच्छा, ये तो हमने अभी डिस्कस करना बाकी है. Okay, fine. So please drop me a message tomorrow. Please connect to me. I will check your 2 answers also. And if you have any doubt in any class, we will discuss that also. Fine. And that's all in our 12th class. So I am waiting for your message for tomorrow's one-on-one discussion. Okay, sir. Okay, and then we can clarify all the doubts if you're having. Okay, sir. Okay, that's it. So let's talk to you tomorrow. Bye bye. Take care and good night. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Abhinav is looking cool. Thug life.